آداب ناظرین، اردو خبروں کے ساتھ میں زبیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم خبروں پر۔ راہل گاندھی نے کی صدر ہند سے ملاقات، کسان تحریک کی وکالت۔ ڈی ڈی سی انتخابات کے حتمی نتائج کے بعد گوکار الائنس کے حامیوں کی میٹنگ۔ جنوبی کشمیر میں جنگجوؤں کے 4 آنت کار گرفتار، جبکہ شمالی کشمیر میں بھی معرکہ آرائی۔ اور جموں کشمیر میں قائم کالجوں کے لیے سرمائی تعطیلات کا ہوا اعلان۔ ناظرین، خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اردو خبروں کا یہ بلیٹن آپ ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.greaterkashmir.com کے ساتھ ساتھ فیس بک پیج، انسٹاگرام پیج، ٹویٹر ہینڈل اور یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے آج بی جے پی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت نے نئے زرعی قوانین کو واپس نہیں لیا تو اس کا خمیازہ نہ صرف بی جے پی، آر ایس ایس بلکہ پورے ملک کو چکانا ہوگا۔ اس ضمن میں راہل گاندھی نے آج صدر ہند سے بھی ملاقات کی اور انہیں تازہ تفصیلات فراہم کی۔ یہ کسان ویرودھی قانون ہے اور اس سے کسانوں کا زبردست نقصان ہونے والا ہے، مزدوروں کا، کسانوں کا۔ سرکار نے کہا تھا کہ یہ قانون کسان کے فائدے کے ہیں اور دیش کو دکھ رہا ہے کہ کسان قانون کے خلاف کھڑا ہوا ہے، اور میں پردھان منتری جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کسان ہٹے گا نہیں۔ پردھان منتری کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کسان اور مزدور گھر چلے جائیں گے، نہیں جائیں گے جب تک یہ قانون واپس نہیں لیا جائے گا۔ جوائنٹ سیشن کیجئے اور قانون کو ایک دم واپس لیجئے، کیونکہ کسان واپس نہیں جانے والا ہے، اور ہم سب وپکش کی سب پارٹیاں کسانوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ ڈی ڈی سی انتخابات کے حتمی نتائج کے اعلان کے ایک روز بعد ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی رہائش گاہ پر پی ایچ ڈی حامیوں کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ایل جی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ حراست میں لیے گئے تمام سیاسی رہنماؤں کو رہا کیا جائے۔ جموں کشمیر میں تیز رفتار انٹرنیٹ سروس کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی 5G کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن جموں کشمیر کے لوگ ابھی بھی 4G انٹرنیٹ کے لیے ترس رہے ہیں۔ اس موقع پر پی ایچ ڈی رہنما اور پیپل کانفرنس کے چیئرمین سجاد لون نے حالیہ اختتام پذیر ڈی ڈی سی انتخابات میں ووٹ ڈالنے پر عوام کا شکریہ ادا کیا۔ Election has ended. It has been one of the most peaceful elections in the last 3 decades. The most non-violent, peaceful election. And this should have ended up with something good. That it ends with preventive detentions is something which is totally antithetical to the way the elections have been held in terms of peaceful, in terms of peace, in terms of lack of violence. Whereas traditionally in the last 3 decades, we have seen so much of violence. One fails to understand that when you have elections conducted so peacefully, why do you need to detain people? As they have detained in the past, we condemn these detentions with all the power that we have. And we just hope that after such a great performance of democracy, we are not faced with these arbitrary detentions which are illegal. And they should be released immediately. And they should be released immediately. This is our demand. We are today here with a mandate of the people, a majority mandate, a decisive mandate, and we say that they should be released. اور اب کچھ بات موسم کے حوالے سے۔ وادی کشمیر میں اگرچہ یخ بستہ راتوں کا سلسلہ تواتر کے ساتھ جاری ہے، تاہم مطلع ابر آلود رہنے کی وجہ سے رات کے درجہ حرارت میں قدرے بہتری واقع ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی کشمیر میں 26 دسمبر سے لے کر 29 دسمبر تک موسم خراب رہ سکتا ہے۔ محکمہ کے مطابق ان 4 روز کے دوران ہلکے سے درمیانہ درجے کی برف باری ہو سکتی ہے، تاہم بعد ازاں موسم بہتر ہونے کی توقع ہے۔
श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनायद अज़म मत्तू ने कोविड रहनुमा खतूत की खिलाफ वर्जी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कोविड-19 के खिलाफ जंग सिर्फ दायरा इख्तियार या महकमों तक ही महदूद नहीं बल्कि हर शहरी को मजमूई तौर पर सामने आना होगा। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मुश्तरका मल्टी डिपार्टमेंट एक्शन प्लान के तहत अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी। To according to relevant sections of the J&K Municipal Corporation Act, हमने उनको एनफोर्स किया है। चीफ लॉ ऑफिसर साहब यहाँ, कमिश्नर साहब, जॉइंट कमिश्नर साहब, सेक्रेटरी एसएमसी बैठे हैं। हमने उन सेक्शंस को एनफोर्स किया है फ्रॉम 1 जनवरी 2021, जहाँ हम वायलेशंस जो मास्क नहीं पहनेगा, हम वो मैकेनिज़्म अभी बना रहे हैं कि वी कैन इम्पोज अ मास्क अप टू 500। शायद हम ये करें कि पहले हफ्ते हम 200 रुपये का रखें और फिर 500 रुपये का रिपीट वायलेशंस का रखें, बट द फाइन कैन बी अप टू 500 रुपीज़ फॉर नॉट वेयरिंग अ मास्क इन श्रीनगर सिटी लिमिट्स। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने आज कॉलेजों के लिए सरमाई तातीलात का ऐलान किया। ऐलान की रूह से वादी कश्मीर और सूबे जम्मू के सरमाई जोनों में कायम सभी कॉलेज 28 दिसंबर से अगले साल 14 फरवरी तक सरमाई तातीलात के सिलसिले में बंद रहेंगे। सूबे जम्मू के गरमाई जोन में कायम कॉलेज भी 26 दिसंबर से अगले साल 4 जनवरी तक सरमाई छुट्टियों के लिए बंद रहेंगे। ज़िला बारामूला में बाबा यूसुफ इलाके के लोगों ने आज R&B महकमा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। उनका इल्ज़ाम था कि महकमा ने बिना किसी नोटिस के इनक़दामी कार्रवाई अमल में लाई। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर बारामूला से मुतालबा किया कि इस इनक़दामी कार्रवाई के मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के लिए इक़दाम किए जाएँ। जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके में पुलिस ने आज अलबदर जंगजू तंजीम के 4 आनतकारों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असलाह व गोला बारूद बरामद करने का दावा किया। बरामदशुदा हथियारों में एक AK-57 राइफल, एक मैगजीन, 56 गोलियां और एक खतगोला भी शामिल है। याद रहे कि कल भी इसी इलाके में जैश से वाबस्ता जंगजुओं का नेटवर्क फाश करने का दावा करते हुए 6 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। शुमाली ज़िला बारामूला के वनीगाम पाइन गांव में आज जंगजुओं और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन मुआरका आराई शुरू हुई। तफसीलात के मुताबिक पुलिस, फौज और CRPF ने जंगजुओं की मौजूदगी की मुसद्दिका इतलात के बाद वनीगाम पाइन को मुआसरे में लेकर घर घर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। इस मौके पर छुपे जंगजुओं ने फोर्सेस पर गोलियां चलाईं, जिसके बाद वहां बाज़ाबिता मुआरका आराई शुरू हो गई। पुलिस ने मुआरका आराई की तस्दीक करते हुए कहा कि वनीगांव क्रीडी में जंगजुओं के खिलाफ फोर्सेस ऑपरेशन जारी है। आखिरी इतलात मिलने तक मुआसरे में 2 जंगजुओं के मारे जाने की इतला मौसूल हुई है। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस में काम कर रहे सब इंस्पेक्टर वसीम एराज ने उस वक्त पूरे महकमा का सर फख्र से ऊंचा कर दिया जब बानिहाल के मुकाम पर दौरान ड्यूटी उसने एक ट्रक कंडक्टर को दिल का दौरा पड़ते देख फौरन उसे CPR देना शुरू किया, जिसके नतीजे में एक कीमती जान का ज़िया होने से बच गया। तफसीलात के मुताबिक शहरा पर ट्रैफिक जाम था और मज़कूरा कंडक्टर कुछ ख़रीदने की गर्ज से बाजार की जानिब चला, जहां यह वाक़या पेश आया। अवामी सतह पर SI वसीम एराज के इस कारनामे को काफ़ी सराहा जा रहा है। जहां इस बहादुर पुलिस ऑफिसर की बहादरी का कारनामा आपने देखा, वहीं जम्मू खित्ते के ज़िला कठुआ से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने रवायत से हटकर मुनफिरद और जुर्रतमंदाना पेशा अख्तियार करके एक मिसाल कायम की। वसूली गांव की पूजा नामी इस खातून ने ड्राइवरी का पेशा अख्तियार करते हुए पहली खातून बस ड्राइवर का एजाज़ अपने नाम किया। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम पूजा है। पूजा किस तरह से इंस्पायर हुए उस पेशे को लेकर, ड्राइविंग के शोले को? ऐसे ही बचपन से शौक़ था मुझे ड्राइविंग करने का, तो लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मैं बड़ी गाड़ी चलाने लगूंगी। अब जैसे चमत्कारी लग रहा है कोई, और थैंक्स करती हूँ उनका जिन्होंने साथ दिया, जिन्होंने अपनी लाखों की गाड़ियाँ मुझे दी, मेरे पे भरोसा किया। ऐसे कोई किसी पे भरोसा तो नहीं कर सकता, ख़ास करके लेडी पे भरोसा करना मुश्किल होता है। लोग कहते हैं कि लेडी के पास दिमाग कम होता है, तो आज के बाद किसी को पता चलेगा कि नहीं, लेडी के पास भी दिमाग होता है।
लेकिन उसको यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि लेडी के पैरों में बहुत सारी बेड़ियाँ पड़ी होती है, कोई ससुराल की तरफ से, कोई मायके की तरफ से। तो मैं वही बेड़ियाँ सारियाँ तोड़ के ये काम कर रही हूँ। और अब नाज़रीन आखिर पर यह खबर कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम श्रीनगर की इतला के मुताबिक कल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर किसी भी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं होगी। ट्रैफिक हुकाम ने मुसाफिरों से अपील की है कि शाहरा पर सफ़र करने से पहले हमारी एडवाइजरी को देख लिया करें। अब तक की खबरों में नाजरीन इतना ही। इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि उर्दू खबरों का यह बुलेटिन आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.greaterkashmir.com के साथ साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी देख और सुन सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।